Voice is audible? I think due to network connections, problem occur. Voice audible है? Screen is visible? Okay. Now we are moving ahead. जब प्रोग्रामिंग का होगा तब देख लेंगे, ठीक है? Now comes physical design of VLSI circuit. Basically what happens, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है कि CMOS MOSFETs की fabrication, electrical parameter, second and higher order effects and all. And numerical based on that I gave you in assignment. Now physical design of VLSI में it is basically the step in the standard design cycle that follows after the circuit design. और इसमें पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि एक तरह का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट. And this step is usually split into several sub-steps which include both design and verification and validation of the layout. And as I told you, फ्रंट एंड में VHDL प्रोग्रामिंग आती है और बैक एंड में हमारे क्या आता है, design verification, circuit designing and all. So back-end design of physical design. Each phase mentioned above flows associated with this design. This is going to be more clear by the VLSI design flow. Before explaining the design flow, we must see the history of physical design. Board layouts जो हैं वो 1960s में चलते थे. Then 70s में स्टैंडर्ड स्लेल, पेलेस एंड राउट स्टार्ट हो गए. फिर अर्लियर 80s में ओवर द सेल राउटिंग. आफ्टर दैट डिक्लेयर्ड डेड इन द लेट 80s and found alive and kicking 90s. And finally, physical design has become a dominant force in the overall design cycle. I just suggest you to write down sometime it past what do you understand by the physical design of the VLSI circuit and when it came into the existence. So existence में तो ये 90s 80s में आ गया था जब VHDL इन्वर्ट हुआ था, बट इतना ग्रेजुअली उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी. उससे पहले बिफोर 1980s अर्लियर एंड ऑल क्या होता था, कोई भी सर्किट डिजाइन हो जाता था और बाद में जब उसको यूज करते थे तब पता चलता था इसमें प्रॉब्लम है और फिर उसकी एरर सॉर्टिंग एंड हैंडलिंग होती थी. वेयर एज पर्टिकुलरली आज के टाइम में पहले अगर हमारा कोई पीसीबी डिजाइन हुई है, फैब्रिकेट हुई है, तो उसको यूज करने से पहले उसकी सारी टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, राउटिंग, एवरीथिंग वी यूज टू चेक जस्ट टू वेरीफाई कि सर्किट सही से चल रहा है. ठीक है, बना लेते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके फेजेस थे. जैसे 60s में बोर्ड लेआउट था, 70s में स्टैंडर्ड स्लेल, प्लेस एंड राउट था, ओवर द सेल राउटिंग 80s में स्टार्ट हुई, अर्ली 80s में, एंड होते होते 80s में डिक्लेयर्ड हो गया था कि नाउ देयर इज अ नीड फॉर VLSI डिजाइन और इट गेट फाउंड अलाइव एंड किकिंग इन दिस. एंड आई एम गिविंग यू 2 minutes to draw this, then we'll move further.
यहाँ पे मंगानी है, मंगानी है। बाहर से मंगा लेंगे। Yes. Have you made this, beta? Now see, as the 1990s, VLSI design started and become dominant. So in that, first of all, 1990s में जो features थे typically एक IC designing के लिए उसकी दो category थी, full custom and semi custom. Now from this, your exam point of view content has been started. Sometime it could be asked, differentiate between full custom and semi customs. So you must know what are those. Fine. तो full custom design क्या होती है? Fully flexible on layout design. No predefined cells are used. Full custom में ये रहता है, if I design a circuit for say suppose AND gate logic, so only AND gate logic can run in that particular circuit and nothing else. That is why it is say no predefined cells are used and full flexibility on the layout design. Semi custom में क्या होता है? प्री डिजाइन लाइब्रेरी सेल्स रहते हैं, प्रिफरेबली टेस्टेड विद DFM कह सकते हैं हम. डिजाइनर्स आर हैज फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लेसमेंट ऑफ द सेल एंड राउटिंग. सेमी कस्टम में ये है कि ये रहते तो फुल कस्टम की तरह ये, बट इट हैज सम लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी in the placement of the cells and the routing. One can refer ASIC for full custom design and FPGA for semi-custom design. What it mean? Particularly, full custom में ये रहता है कि कोई भी predefined cell नहीं रहेगा और उसको आप कहीं दूसरे सर्किट में यूज नहीं कर सकते हो. Best example of full custom is ASIC. और एज आई टोल्ड यू कि एक लॉजिक सर्किट जिसके लिए मैंने सर्किट बना दिया है उस पर मैं कोई दूसरा लॉजिक यूज नहीं कर सकती. वेयर एज इन अ सेमी कस्टम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. और फुल का सेमी कस्टम का एग्जांपल है योर FPGA. एंड इन दिस बोर्ड यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी. सेम सर्किट कुड बी यूज फॉर द AND लॉजिक एंड सेम कुड बी बाय OR लॉजिक by just changing the circuit condition or programming condition. Fine. The reason being that one has the flexibility to design, modify design blocks from vendor provided libraries in ASIC. And ये जो flexibility रहती है that is missing in semi custom. FPGA, Altera ये सभी इसके example है. अभी तुम्हें little bit way में यही समझना है कि full custom is ASIC and semi custom is FPGA. So अगर इन दोनों में भी difference पूछा गया है तो तुम ASIC और FPGA के difference लिख सकते हो. Or otherwise, many a time they differentiate ASIC and FPGA. Fine. Now, first thing, what is the utility of physical design? So, for a student, अगर मैं particular बात करती हूँ, तो chip implementation without physical design हो ही नहीं सकता है. Circuit designer to understand how tools work behind the scene.
फाइन. एंड प्रोसेस इंजीनियर जो है वो ट्यून करते हैं प्रोसेस को. दैट इज मोर सर्किट एंड फिजिकल डिजाइन फ्रेंडली. Mathematical, computer science majors who want to find tough problems to solve, and that is going to be sought out by the VLSI design. लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे it's very easy. It could be asked, what do you understand by physical design and what are its utility? तो utility student part पे भी अब बता दिए इसमें. As a circuit designer also informed and as a process engineer also, और mathematical और computer science majors जो हैं उनके लिए भी physical design बहुत जरूरी है. ठीक है, is it clear बेटा? नाउ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिजिकल डिजाइन की अगर मैं बात करूं, सो वैसे तो ये फिजिकल डिजाइन हम इसीलिए यूज कर रहे हैं कि मोर और मोर हमारे पास सर्किट डिजाइन को रहता है, और उसको हम कंपैक्ट कैसे करें. सो मोर देन 100 million transistor used to be there which perform driven design, power constrained designs time to the market. So high performance, high cost. बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि जब बहुत ज्यादा 1,100 million ट्रांजिस्टर हो जाते हैं, हाउ टू मैनेज देम विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग देयर स्पीड एंड द पावर, लाइक हाई परफॉर्मेंस हाई कॉस्ट, दैट इज गोइंग टू बी देयर. नाउ व्हाई फिजिकल डिजाइन इज स्टिल रेलेवेंट? देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक हम कहते हैं कभी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, उसके बाद भी ये इतना रिलेवेंट कैसे है? सो मेनी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आर स्टिल वेरी सब ऑप्टिमल, लाइक प्लेसमेंट है, इंटरकनेक्ट डोमिनेंस है. अगर हम फिजिकल लेआउट नहीं बनाएंगे तो कोई भी एक्यूरेट कनेक्शंस नहीं होंगे. मोर न्यू फिजिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट्स है, लाइक क्रॉस टॉक नॉइस, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, more vertical integration needed. Physical design is a key linking step between higher level optimization and lower level modeling. That you can note it down. Basically कई बार हम कह रहे हैं कि complexity भी बहुत ज़्यादा है इसको maintain करने में. Somewhere we are telling if we want manage it, it is unable to sort out placement and interconnect issue. That is why it is saying कि ये key link होती है. That is a step between higher level optimization and लोअर लेवल मॉडलिंग. हायर लेवल और लोअर लेवल की जो मॉडलिंग्स होती है उसके बीच का ये पैचअप. ठीक है, नाउ कम्स मूर्स लॉ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. दैट इज नथिंग बट सिंपली अ ग्राफ बिटवीन द ईयर वर्सेस द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर काउंट पर चिप. So minimum transistor feature size increases by 0.7x every 3 years. So like this, gradually as years are moving, number of transistors are also moving and it is million, trillion and all. तो ये मैं तुम्हें कहूंगी कि ये बना लो. It will hardly take 1 minute to draw. Just you have in a mind, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में पूछ लिया एक मूर्स लॉ, एक आगे चल के एक गजास्की बाय चार्ट आ रहा है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, Ma'am, voice is not clear. हाँ बेटा, Voice is not clear. my voice. Yes, ma'am. एक्चुअली आज है ना यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है. ये मैं भी तुम्हारी क्लास जो ले रही हूँ ना, मेरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके ले रही हूँ.
तो इसीलिए एक बार बीच में हुआ होगा कि 1-2 मिनट के लिए मीटिंग ड्रॉप हुई थी, दैट इज अ रीजन ना, बट somehow I will try. ओके, ये मूड्स लॉ बना लिया बेटा भावना? ठीक है, इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है. मूड्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द मूड्स लॉ, द ट्रांजिस्टर काउंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट डबल्स अप्रोक्सीमेटली एवरी 2 years. ये बता रहा है कि एज द ईयर्स आर मूविंग अहेड, द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ग्रेजुअली जो है वो डबल या ट्रिपल वे में हायर हो रहे हैं. ऑन मोस्ट मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स, मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है दे आर कंटेन इन द कैचेस. कॉन्सिक्वेंसेज जो है स्मॉलर ट्रांजिस्टर्स के, फास्टर ट्रांजिस्टर स्विचिंग है, मोर ट्रांजिस्टर्स पर चिप है, दैट इज गोइंग टू बी देयर. वन मोर थिंग इज देयर, एक तो मूर्स लॉ, सेकेंड इज दिस गजास्की वायर चार्ट. दैट आई जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, या बनाने का भी मैं तुम्हें पूरा टाइम दे रही हूँ क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गजास्की वायर चार्ट जो है ये 3 डोमेन में है. वाई जैसा गजास्की वायर चार्ट इसको इसलिए कहते हैं गजास्की कुन चार्ट. ठीक है, बिहेवियरल डोमेन, स्ट्रक्चरल डोमेन एंड फिजिकल डोमेन. एंड ये जो है एक तरह से हार्डवेयर वीएलएसआई के बारे में बताता है. ये डेवलप हुआ था तुम्हारा 1983 में, और 1985 में फाइनली ये रीडिफाइन हुआ. And this basically used for the development of integrated circuit. This could be asked in your midterm examination or your RTO exam also. What is the utility of Gajaski wire chart in physical design of VLSI? ठीक है, now see, 3 वे में इसको स्प्लिट किया है, बिहेवियरल डोमेन, स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल डोमेन. So as far as my physical domain is concerned, हाँ मैंने फिर मोबाइल से चलाया था. अब तो कर नहीं, हाँ थैंक यू सर. अभी सो ट्रांजिस्टर फंक्शन, लॉजिक, रजिस्टर ट्रांसफर, algorithms, systems. And as far as the structural domain is concerned, transistor, gates, flip-flops, ALU, RAM, processors. And physical domain की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर लेआउट comes into the picture, then cell layout, module layout, floor plans, physical partitioning. This is all about your Gajaski wire chart. ठीक है, बना लो. ईके टूल के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे. आई मीन टू से नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास रहेगी 4th को करेंगे. ठीक है, ये बना लो. आई एम गिविंग यू टाइम. इसका मीनिंग ये है, जब मैं व्हेन आई वाज इन योर स्टेज एंड व्हेन आई लर्न इट, हमारे तो बीटेक में वीएलएसआई नहीं था, बट एमटेक के टाइम में मैंने हमें तो बहुत डिटेल में था. गजास्की वाई चार्ट करके पूरा एक चैप्टर था उसमें. सो वाई वी आर लर्निंग, क्या है इसमें ऐसा लगता है, बट बेसिकली ये चीज ये है कि कोई भी मैं सर्किट डिजाइन करती हूँ तो उसके 3 डोमेन. एक तो वो सर्किट को मैं डिजाइन कर सकती हूँ उसके बिहेवियर से, जैसे नैंड गेट है. सो व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, आउटपुट इज 0, ये उसका बिहेवियर है. और स्ट्रक्चरल डोमेन में मैं उसके जाऊंगी तो नैंड गेट कैसा बन सकता है, एक एंड गेट और एक नॉट गेट से भी बन सकता है. तो ये उसका स्ट्रक्चर है. और फिजिकल डोमेन में जाएंगे तो उसका लेआउट पार्ट आ जाता है, लॉजिक गेट, सेल लेआउट एंड ऑल. तो वही चीज इसमें बताई है कि कोई भी सर्किट का मैं बिहेवियरल डोमेन देखती हूँ. ऑन दी होल इन अ ह्यूज अमाउंट इट इज अ सिस्टम. सिस्टम किससे मिलके बनता है, एल्गोरिथम से. एल्गोरिथम किससे मिलके बनी है, रजिस्टर ट्रांसफर से. and that going to be used with the logics with and transfer functions. और ऐसी स्ट्रक्चरल की हम बात करते हैं तो प्रोसेसर है. प्रोसेसर किससे बने, एएलयू रैम से. एएलयू रैम किससे बने, गेट फ्लिप फ्लॉप से. एंड दैट इज गोइंग टू मेक बाय द ट्रांजिस्टर. सेम इन अ फिजिकल डोमेन, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फिजिकल पार्टीशनिंग. ये किससे स्प्लिट हुई है, फ्लोर प्लान से, फिर मॉड्यूल लेआउट, सेल, और वेरी बेसिक पे हमारे पास ट्रांजिस्टर लेआउट. बना लो इसको. सो आज अपन ने क्या डिस्कस किया, टुडे वी डिस्कस गजास्की वायर चार्ट, मूर्स लॉ, बेसिक्स ऑफ फिजिकल डिजाइन की 1960 से लेके अर्लियर 1980s तक में. तो पुराने टाइम से जो चीजें थी वही चल रही थी, बट लेटर 1980s में नीड ऑफ फिजिकल डिजाइन केम एज द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कैम अक्रॉस फ्रॉम बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन एंड ऑल. फाइन.
बना लो, मीनवाइल मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेती हूँ। आंचल, भावना, मनदीप, अटेंडेंस दो बेटा। मोहित, नेहा, मनदीप प्रेजेंट मैम। मोहित प्रेजेंट मैम। ओके। प्रणव मनारिया, शिवांगी, वैभव मंगल, प्रणव मनारिया, मैम भावना प्रणव मनारिया प्रेजेंट। Present ma'am, Shivangi present. ओके। प्रवीण गहलोत, मंगल प्रेजेंट मैम। Ma'am, Shivangi present. वंदना, यस मैम। ओके। अब है ना, कल अपनी क्लास नहीं है, अपन 4th को ही लेंगे, ठीक है? फाइन। कल और परसों एंजॉय करो, तुम्हारी भी राखी आ रही है फेस्टिवल, और 4 और 5 को भी मेरा मैसेज आ जाएगा। वैसे भी अपना सिलेबस अच्छा चल रहा है, इसमें अपन को एक्स्ट्रा मैनेज करने की जरूरत नहीं है। क्लास नहीं भी हुई तो रिलैक्स रहना, होगी तो आई विल लेट यू नो। ओके फाइन, ठीक है? और किसी की अटेंडेंस तो नहीं रहेगी? वंदना, वैभव, शिवांगी, प्रवीण, प्रणव, नेहा, मोहित, मनदीप एंड आंचल। फाइन, ठीक है? नाउ बाय 12:05 ज्वाइन फॉर द सस्टेनेबल Shivangi इंजीनियरिंग। present. Ma'am, बोलो बेटा। हाँ बोलो आंचल। ma'am, Shivangi present. मैम भावना प्रेजेंट। ओके ओके Ma'am, Shivangi present. ओके शिवांगी, मैंने मैम प्रवीण। मैम ठीक। प्रणव प्रेजेंट। प्रणव ओके, ठीक है। अब 12:05 पे अपन सस्टेनेबल इंजीनियरिंग की क्लास में मिलते हैं। और भी कुछ डिस्कशन या तुम कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो वी कैन डिस्कस। ऐसा नहीं है कि बस ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ना है पढ़े और फिर मुंह पे उंगली रख के बैठना है ना। मतलब आई विल लाइक टू लाइक इफ यू विल डिस्कस topic content with me or like that, then the class is going to be more interactive, क्योंकि ये सेमेस्टर या ये सेशन ऐसे ही जाना है बेटा, है ना? ठीक है, ओके। कोई भी इशू हो, कुछ भी हो तो बात करो मेरे से। अभी अपन मिलते हैं 12:05 को। फाइन, ओके। एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट whenever our class is there EK2। अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो बेसिक इंट्रोडक्शन था VLSI डिजाइन का, जिसमें गजास्की वाइचार और मूर्स लॉ इंपॉर्टेंट है। नाउ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। एक और क्लास इसकी थ्योरी में जाएगी, उसके बाद हमारा रियल पार्ट जो है 1 या 2 क्लास, आई थिंक 2-3 क्लासेस, और फिर अपन VHDL स्टार्ट करेंगे। VHDL से तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगे, ठीक है? ओके, सी यू।